આપી દાદાશ્રી માટે. સંત કેવા, ભક્ત કેવા, શું કેવું મારે કે જે એમ કહેવાય ભગવાનના ફરિશ્તા થઈને આયા સુધી આવ્યા ને મને તમને શિવ ભક્તિમાં જોડ્યા હોય બાપ. ઈ દાદા આજ મને તમને એમ કહેવાય કે આજ લહાન ગામની માલિપા, લોનખેડાની માલિપા એમ કહેવાય કે આ ભૂમિની પવિત્ર ભૂમિની માથે આજ યજ્ઞ હવન કુંડમાં યજ્ઞ કરાવવાના હોય. બોલીએ હર હર મહાદેવનો. દાદાશ્રી આપણી વચ્ચે આવી રહ્યા છે. જેમણે માનવ કલ્યાણ માટે માનવને કેડી શીખવાડી હોય, ભગવાન ભોળાનાથે જેને એમ કહેવાય મને તમને એવા અવિરલ આત્માનો ભેટો કરવા હાટું દાદાનું સાનિધ્ય આપ્યું હોય એવા દાદાશ્રી આપણી વચ્ચે આવી રહ્યા છે. આપણે જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટ આહવાન કરીએ દાદાશ્રીનું. તાળીઓ. અવિરલ વિભૂતિ ભગવાન ભોળાનાથનો આશીર્વાદ કે મને તમને આવા દાદાશ્રી જેવા સદગુરુ મળ્યા છે. ભગવાન શિવ શંભુનો આશીર્વાદ. દરેક ભક્તો, દરેક શિવ ભક્તોને વિનંતી છે કે જગ્યા પોતપોતાની ગ્રહણ કરે. શિવ ભક્તોને વિનંતી છે કે જગ્યા ગ્રહણ કરે, પોતપોતાની પોતાના યજ્ઞકુંડ પાસે બેસે. આપણી વચ્ચે દાદાશ્રી ઉપસ્થિત છે. તેમણે આ જગતની માલિપા પોતાનો દેહ એટલા માટે ધારણ કર્યો હોય મને એમ લાગે કે આ જગતમાં માણસનું કલ્યાણ ક્યારે થાય ભાઈ, અને માનવ કલ્યાણ માટે જાણે એમ કહેવાય આ જગતની માલિપા એમ કહેવાય ભૂમિની માથે એમ કહેવાય દેહ ધારણ કર્યો હોય મનુષ્યનો. એવા આપણા દાદાશ્રી આપણે જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટે આહવાન કરીએ એક વખત. બોલીએ પરમ પૂજ્ય દાદાશ્રીનો જય. હર હર મહાદેવનો જય. કાર્યક્રમ હવનનો કાર્યક્રમ, અગ્નિહોત્ર હવનનો કાર્યક્રમ શરૂ કરતા પહેલા દાદાશ્રીની દીકરીઓ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. શિવ ભક્તો, દીકરી માટે તો અમારો કવિ લખે કે નહીં દીકરી નહીં દૂધણું નહીં ઘૂંઘટવાળી ઘેર, નહીં દીકરી નહીં દૂધણું ને નહીં ઘૂંઘટવાળી ઘેર, તો મારો બેકરણ દાદો ભણે કે એનું જીવન ખારું છે બાપ. જેના ઘરમાં દીકરીઓ નથી, હા, જેના ઘરમાં એમ કહેવાય કે વહવારું નથી, જેના ઘરમાં ગાય નથી, દૂધણું નથી, એનું તો જીવન જ ખારું છે રોય બાપ. અને એમ કહેવાય કે ઉજળું જીવન લઈને પરમાત્માએ ભોળાનાથે શિવજીએ મને તમને એમ કહેવાય ઉજળું જીવન લઈને એમ કહેવાય આ પૃથ્વીની માલિપા મોકલેલા હોય. અને જેના માટે એમ કહેવાય કે જેના ઘરમાં દીકરીઓની પાપા પગલીઓ હોય અને એ દીકરીઓ દાદાની દીકરીઓ, એ દાદાની દીકરીઓ આ યજ્ઞ પહેલા શ્લોકની વંદના કરવા જઈ રહી છે. આપણે બધા એક ધ્યાનથી સાંભળીએ. શરૂ થાય છે શ્લોક વંદના.
गणेशाय नमः। कंठ में जिनके विराजता हरा है, गंगा जलम शीश पे पाए अंग विराज जिनके गिरिजा, पत्नी स्वयं पार्वती। नंदी कार्तिक गणपति के सहित केदारनाथ प्रभु, केदार गिरि पे सदा ही रहते, करते सदा मंगलम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। परमेश्वर तुझ रचना का कोई न पावे पार। तुझ रचना का कोई न पावे पार, तेरी महिमा परंपार, तेरी महिमा परंपार। हे परमेश्वर तुझ रचना का कोई न पावे पार, तेरी महिमा परंपार, तेरी महिमा परंपार। जलचर थलचर नभचर देखो, सब में चेतन बिलस रहा, सब में चेतन बिलस रहा। सबकी बोली नहीं एक सी, रहन सहन बिन बाती जहाँ, रहन सहन बिन बाती जहाँ। पृथ्वी सूरज बरखा वायु सबके तुम आधार। पृथ्वी
तुझ रचना का कोई न पावे पार, तेरी महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। भांति भांति के फूल पतंगे, सबके तुम हो करतार, सबके तुम हो करतार। भांति भांति के फूल पतंगे, सबके तुम हो करतार, सबके तुम हो करतार। मानुष तन की नचना न्यारी, तुम सब ही के भरतार, तुम सब ही के भरतार। कोई जान सके ना तेरी कला को, तुम कौशल भंडार, कोई जान सके ना तेरी कला को, तुम कौशल भंडार, तेरी महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। हे परमेश्वर तुझ रचना का कोई न पावे पार, तेरी महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। प्रकाश पानी और हवा को, प्रकाश पानी और हवा को, बिना दाम तुम दीन हो, बिना दाम तुम दीन हो। कन कन बोया पृथ्वी में, सो अनंत तुम कर दीनो, अनंत तुम कर दीन हो। सबके मालिक फिर भी तुम है, सबके मालिक फिर भी तुम है, कहीं न लिखा नाम, तेरी महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। हे परमेश्वर तुझ रचना का कोई न पावे पार, तेरी महिमा अपरंपार, 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 तेरी महिमा अपरंपार। હાલો. હવે હિન્દુ ધર્મમાં અને હિન્દુ ધર્મની સંસ્કૃતિની માલપા એમ કહેવાય કે દીપનું ઘરેણું મહત્વ છે. કરોડો સૂર્ય એમ કહેવાય કે આકાશમાં મોજૂદ હોય, પણ ભગવાનની જ્યારે મુહૂર્ત હોય, કોઈ કથાનું કીર્તનનું વાંચન થતું હોય, ગાન થતું હોય, કે કોઈ પણ શુભ પ્રસંગ લઈ લ્યો મિત્રો, કે કોઈ પણ પ્રસંગ હોય કે આહવાન થતું હોય ભગવાનનું, એ જગ્યા પર દીપ પ્રાગટ્યની જરૂર છે. અને એ દીપ પ્રાગટ્ય કે મારા અને તમારા અંતરના અજવાળા કરે. સદગુરુ દાદાશ્રીના સાનિધ્યમાં દીપ પ્રાગટ્ય માટે હું જોગસિંહ પ્રેમસિંહજીને વિનંતી કરું, બીજા ટીકારામભાઈ, સખારામભાઈ, પોપટભાઈ, દિગંબરભાઈ, આ હરિભક્તોને શિવભક્તોને વિનંતી કરું કે તેઓ ભોળાનાથના ફેલાવી રહ્યા છે એવો ઉદ્દેશ છે. ભગવાન ભોળાનાથને આજ વિનંતી કરીએ, સદગુરુ દાદાશ્રીના સાનિધ્યમાં વિનંતી કરીએ
જે તને દીપ ની આ જ્યોતિ સળગાવી છે બાપ, એ દીપ જ્યોતિને નમસ્કાર કરતા કવિ એમ કે શુભમ કરોતુ કલ્યાણમ, શુભમ કરોતુ કલ્યાણમ, આરોગ્ય ધન સંપદા શત્રુ બુદ્ધિ વિનાશયો દીપ જ્યોતિ નમોસ્તુતે. બધાયનું કલ્યાણ કરવા વાળી, બધાની અંદર આરોગ્ય અને ધનની સંપદા વધારનાર અને માણસની અંદર મલિન તત્વો શત્રુ રૂપી જે બુદ્ધિ હોય એ શત્રુતાને વિનાશ કરવા વાળી હે દીપ જ્યોતિ, અમે બધા તમને આજ નમન કરીએ છીએ, નમસ્તે કરીએ. અસ્તુ. માનવનું કલ્યાણ કરવા માટે આપણે તાળીઓના ગડગડાટથી બતાવીએ. દાદાશ્રીનું સ્વાગત થાય છે. અશોકભાઈને પણ ધન્યવાદ, તેમણે દાદાશ્રીનું સ્વાગત કર્યું. સૌરાષ્ટ્રમાં આલા ખાતરની દાતારી વખણાય અમારો રાજસ્થાનનો જોગશી બાપુ, એમની આજ દાતારી ગવાઈ રહી છે. ધન્યવાદ. આપણી વચ્ચે આપણા દાતાર એવા જોગશી બાપુ દાદાશ્રીનું સ્વાગત કરવા માંગે છે. તો દાદાને વિનંતી કરીએ, દાદાશ્રીને વિનંતી કરીએ કે બાપ, અમે તો નબળા મનના માણસ, અમારું મન મજબૂત તમે કરો. સાલ ઉઠાડી સ્વાગત કરવામાં આવે. જોગશી બાપુ તરફથી દાદાશ્રીનું સ્વાગત થાય છે. ધન્યવાદ. તાળીઓના ગડગડાટ આપણે ચાલુ રાખીશું. ધન્યવાદ જોગશી બાપુ.
घनश्याम सवारो सारे बिगड़े काम पधारो मेरे घर घनश्याम सवारो सारे बिगड़े काम पधारो मेरे घर घनश्याम सवारो सारे बिगड़े काम। सर्व अग्निहोत्र यज्ञम करन्ते धन्यस्ते लोनखेड़ा नगरे धन्यस्ते अग्निहोत्रम मानवे एवं धन्यस्ते भूमिदानम कृत्ये परिवारे आरोग्यवानम सुखवानम धनकर्ता प्रवर्तिवृद्धम सुशोभितम निवेदितम कल्याणम अग्निहोत्रम हवनम शुभारम करिष्यामि। समस्त अग्निहोत्रा बंधुओं को नम्र निवेदन है, आप अपना स्थान ग्रहण करें। जो अभी अभी आए हुए हैं मेहमान यज्ञ के लिए, उन्हें कृपया करके जल्दी से जल्दी सामग्री भेजें। वहां हमने प्रूफ के साथ संपूर्ण सत्य के साथ अखिल महाराष्ट्र यज्ञोपवीत समस्त देवगुणी भूदेवों को हमने जब पूछा कि अग्निहोत्र हवन होने जा रहा है, तो मैंने पूछा कि अग्निहोत्र हवन के लिए जो आयोजन कर रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है हो जाएंगे आपके 5-50 जने। पहली बार आप सब जने भी शास्त्र खोल के देखना, जो विद्वान बंधु बैठे हैं, आध्यात्मिक भावनाओं वाली बहनें बैठी हैं, और पढ़े लिखे नौजवान युवाओं, गूगल में सर्च करके देखना आप कि महाराष्ट्र के अंदर आपके लोनखेड़ा नगर में अग्निहोत्र हवन पहली बार इतना बड़ा हो रहा है, जहां आज तक कहीं नहीं हुआ इतना बड़ा अग्निहोत्र हवन। मैंने सातारा के पास एक इस्लामपुर गांव है, वहां हमारे साथ बहुत वर्षों से पुराना पंडित जी से संपर्क है, उम्र होगी ये 89 साल, पूरे महाराष्ट्र में अग्निहोत्र हवन कराते हैं। उन्होंने कहा कि बेटा मेरे जीवन में पहली बार मैंने बहुत बहुत कोशिश की, तब जाके 240 जने बैठे थे। अग्निहोत्र हवन होना, अग्निहोत्र हवन करना, अग्निहोत्र हवन के अंदर निमित्त बनना, अग्निहोत्र हवन देखना, सुनना, स्पर्श करना, अपने मन के अंदर महसूस करना, अपने जीवन में इसको उतारना और इस काम के लिए प्रचार करना, इस काम के लिए किसी को प्रेरित करना। अग्निहोत्र हवन के लिए आप तन और मन से 1 महीने से सेवा दे रहे, उसका उल्लेख अग्निहोत्र के लिए यजुर्वेद शास्त्र के अंदर दिया गया है। जिस किसी बंधु को पढ़ना है ले सकते हैं। अग्निहोत्र हवन आपके जीवन में बहुत काम की संभावना रहती है। बच्चों की पढ़ाई, व्यवहार देखना, त्यौहार देखना, समाज में रहना है, शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक, मानसिक। तब आप क्या करते, एक आयोजन बनाते। उस आयोजन के अंदर सबसे पहले एक मूल प्रश्न लिया जाता है कि अपन शुरुआत कहां से करें। इसी तरह मानव जीवन जब पैदा होता है, उसके कल्याणार्थ जब काम अपने जीवन के समस्त प्रेरणा स्रोत धीरे 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 खोलने लगता है, उसमें सबसे पहले आता है उसका एक संकल्प कि उसके जीवन के अंदर क्या संकल्प है। वो जो करने जा रहा है उसका एक संकल्प होता है। और कोई भी काम, जैसे जिसने यहाँ ये टेंट लगाया वो बंधु ने, उसका एक संकल्प होता है कि मुझे कल सुबह में 10 बजे तक या एक दिन पहले मुझे देना है। उसी तरह पायल और अमीषा का होता है कि जैसे यज्ञ चालू होता है हमें हमारे भजन की तैयारी करनी है। आप लोगों का, मेरा, सबका जीवन में एक संकल्प होता है। उसी तरह मानव जीवन के अंदर जब आप कुछ आपके जीवन रूपी गाड़ी को आप धीरे 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 आगे बढ़ाते हैं, यह लोक से परलोक के जाने की व्यवस्था में अपन लगते हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है एक संकल्प। और भगवान विष्णु खुद शिव के चरण में बैठ के कहते कि हे प्रभु, अग्निहोत्र हवन में मुझे बैठना है और मुझे यज्ञ करना है, इसलिए मेरे संकल्प की शुरुआत कराए।
तब भगवान शिव के आंखों में से अश्रु की धाराएं निकलती है। हे देव, जिसने जन्म के साथ अपने मानव का कल्याण किया, उल्लेख के साथ अपने मानव जीवन के अंदर प्रेरणा स्रोत बने, आप मुझे अग्निहोत्र यज्ञ के बारे में पूछ रहे हैं, तो अग्निहोत्र यज्ञ का मैं आपको बताता हूं कि अग्निहोत्र क्या होता है। मानव जीवन के अंदर आप एक बार संकल्प लेके यहां बैठे हुए हर किसी भक्त को, आपको एक पैम्पलेट दिया गया, पेन दिया गया और आपका मोबाइल नंबर लेंगे हम। आप एक बार बैठ के मन से, वचन से आप यज्ञ के अंदर एक संकल्प लेके बैठे कि मेरे जीवन के जितने भी अधूरे पड़े काम, मेरे जीवन की जो नैया कहीं अटकी हुई है वो, मेरे जीवन के अंदर सुख शांति और समृद्धि का पार्थ, मेरे जीवन के अंदर मेरे परिवार की सामाजिक आर्थिक पारिवारिक समस्याएं, उस सब का निकाल लाना। आप एक बार संकल्प लेके देखिए। अग्निहोत्र हवन, पहले जमाने में ब्रह्म ऋषि बहुत बड़े बड़े जिन्होंने हजारों साल साधना करते, तब जाके अग्निहोत्र हवन उनके जीवन में एक बार आता था। वही धीरे 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 सते 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 नीचे गई। तब कलयुग आया। कलयुग के अंदर 0.4 में, यानी इतने कम समय में अग्निहोत्र हवन का आयोजन होता है। वहीं आदि अनादि काल सनातन काल में हजारों साल जब ब्राह्मण भूदेव तपस्या करते, तब जाके अग्निहोत्र हवन होता था। अग्निहोत्र हवन मतलब मानव के जीवन का संकल्प, मानव के जीवन के संकल्प के अंदर कि इदम मम स्वाहा, हे प्रभु आज मैं आपका, आप मेरे, हे मां अग्नि आज मैं आपके जीवन में प्रथम बार समर्पित कर रहा हूं। जीत भी मेरी, हार भी मेरी, फिर भी मैं आपको समर्पण करके इस भावना को कह रहा हूं कि अब जीत भी तेरी और हार भी तेरी। आप संकल्प लेके देखिए। यज्ञ के अंदर अग्निहोत्र हवन कराने के अंदर भी 3 पात्र आते हैं। कहते हैं, शास्त्र के अंदर लिखा है, पद्म पुराण शास्त्र में, अग्निहोत्र हवन वही करवा सकता है जो भगवान शिव के समक्ष अपने आप को समर्पित करता है। शास्त्र में लिखा है कि एक बार मानसरोवर की यात्रा होनी चाहिए, एक बार कैलाश की परिक्रमा होती चाहिए, एक बार गौरी कुंड का स्नान होना चाहिए, एक बार राक्षस ताल के अंदर साधना होनी चाहिए, वही अग्निहोत्र कहलाने के लायक होता है। दूसरा पात्र वो आता है जो शिव का भक्त हो, जो शिव का प्रचारक हो, शिव की उपासना करता हो, शिव के सानिध्य में बैठ के धर्म, परिवार, अर्थ, काम, मोक्ष की मनोकामना रखता हो और उस सब से मुक्त होकर परिपूर्ण होकर सिर्फ और सिर्फ शिव के चरण में बैठने की कोशिश करता हो। और तीसरा, सबसे पहले अग्निहोत्र हवन वही करवा सकता है पात्र जिसने जीवन में जब भी बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, समस्त आदि देवताओं का आह्वान किया जाता है, समस्त पूजनीय देवताओं का आह्वान करके जब यज्ञ करता हो, तब उसने जीवन में कभी माचिस नहीं लगाई हो, मंत्रों द्वारा अग्नि प्रकट की गई हो, वही अग्निहोत्र करवाने का अधिकार रखता है। आज भारत के अंदर ये साधनाएं, ये विद्याएं, ये जितनी भी क्रियाएं सब विलुप्त होती जा रही है। इसका एक ही कारण है कि जीवन में संकल्प नहीं है। आपके यहां भी काफी शायद बैठे हैं जिन्होंने देखा होगा अग्निहोत्र हवन करवाने के टाइम में संकल्प लेके बैठे हैं, उनको मालूम होगा और वो हाथ खड़ा करें जिन्होंने ये वैदिक क्रिया देखी है, ताकि आप साक्षी बने। हमने बहुत बार जब बामणवेल के अंदर या कहीं कहीं जब यज्ञ होते हैं, तब हम माचिस का उपयोग नहीं करते, सिर्फ मंत्रों द्वारा अग्नि प्रकट करते हैं। जरा खड़ा होकर बताइए कि कितने जनों ने देखा है वो बात। खड़े हो जाइए। अग्निहोत्र करवाने वाला इंसान वही होना चाहिए जिसने सिर्फ मंत्रों से अग्नि पैदा की हो, मंत्रों द्वारा अग्नि का आह्वान किया हो और अग्नि देवता प्रकट हुए हो। वही आप सबको प्रणाम करता हूं मैं कि अग्निहोत्र के काबिल है हम। रही बात आपके जीवन में खूब सुख शांति और समृद्धि आए और आप जीवन में खूब आगे बढ़े, इसी कारण के साथ आज अग्निहोत्र हवन का आप और हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं। शुभारंभ करिष्यते में नमस्ते पादमशतम पाद पंकजम सुलोभितम निवेदितम कल्याणम देवस्नानम प्रतिगृहातम अग्निहोत्रम हवनम शुभारंभम करिष्यते मम ग्रहे सुख शांति समृद्धि एवं आर्थिक धन लाभ व्यापार वृद्धि एवं मनोकामना पूर्ण प्राप्ति कृष्ण हेतुजम अग्निहोत्र यज्ञम शुभारंभम कृष्ण समर्पयामि। जब जब
अग्निहोत्र समर्पयामि शब्द आता है, आप सबको बोलना है। अगर एक बार भी कोई चूक गए, पारस शिवलिंग के यज्ञ में, श्री यंत्र के यज्ञ में, और बहुत से यज्ञ होते हैं, ग्रह शांति, नवग्रह पूजन, वास्तु, महालक्ष्मी पूजन, नवचंडी, उसमें अगर आप कहीं एक जगह पे समर्पयामि सब चूक जाते हैं तो चलता है, लेकिन अग्निहोत्र के अंदर, यानी आपके जीवन का आज पुनर्जन्म, शास्त्रों की भाषा में कहते हैं अग्निहोत्र यज्ञ करने वाला जीवन में पुनर्जन्म लेता है, उसके अनंत कोटि पाप में से वो मुक्ति प्राप्त करता है, अनंत कोटि फल की प्राप्ति की इच्छा रखता है, उसके सब मनोकामनाएं पूर्ण होकर अनंत कोटि फल की प्राप्ति की तरफ बढ़ता है। सभी महानुभावों से नम्र विनंती है, समर्पयामि शब्द का उल्लेख करें। उसके बाद आप देखते हैं कि अगर आप अग्निहोत्र करें, उसका कैसे मालूम करना है कि भाई हमने अग्निहोत्र हवन किया और हमें सुख शांति मिली। तो जब अग्निहोत्र हवन के बाद आप खुद देखेंगे कि आपको मन को एकदम शांति मिलती है, आत्मसंतोष इसी समय में आपको परिणाम स्वरूप मिलता है। इसके बाद आप जब भी किसी भी काम के लिए जाते हैं, मन में अग्निहोत्र हवन एक बार दिन में सुबह सुबह में इदम मम स्वाहा आपको जरूर बोलना है। जब भी नया संकल्प लेके घर से कुछ भी काम के लिए आप निकलते हैं, तब इदम मम स्वाहा क्या बोलेंगे? थोड़ा जोर से बोलिए ना साहब। इदम मम स्वाहा मतलब हे भगवान, अब हम आपकी चरण में है, हे अग्निहोत्र हम आपकी चरण में है। आप देखना आपके कामयाबी के द्वार खुल जाएंगे। उसके बाद अग्नि के अंदर जब आप आहुतियां डालते हैं, उसके पहले रोग किस तरह से ठीक होते हैं, आपको शायद पैम्पलेट दिया है, पैम्पलेट सबने पढ़ा? एक हिंदी का पैम्पलेट दिया था, किसने किसने पढ़ा? हाथ ऊंचा कीजिए, मालूम पड़ जाएगा, वरना मैं सब आधों ने नहीं पढ़ा। देखो, आधे से भी बहुत ज्यादा ने नहीं पढ़ा। लाल कलर का एक पैम्पलेट है, देखो ना आपके पास, ऐसा पढ़ा है वो हाथ ऊपर कीजिए। देखो बहुत कम जनों ने पढ़ा है। जिस तरह से आप यज्ञ का एक आह्वान लेके आपके अंदर बैठते हैं, आप यज्ञ की तैयारियां के लिए आते हैं, यज्ञ का जब नाम सुनते हैं, उसी समय में आपकी छठी इंद्री के अंदर से एक रस का स्राव होता है, जिसे इंग्लिश में हार्मोन्स बोलते हैं। वो स्राव इतना पवित्र, इतना एंटीबायोटिक्स वाला होता है कि वो धीरे धीरे आपकी नाड़ियों में उतरता है। आप जिस तरह आप जब अग्निहोत्र हवन के अंदर आप आहुति देंगे, उसके पहले वो श्राव धीरे 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 मन से, चलो आरती बहन आई थी, आरती बहन का मान रखने के लिए मैं आया नहीं, अशोक भाई बोल रहे थे इसलिए चलो अशोक भाई का काम पड़ते रहता है, अशोक भाई बेचारे को कहा ना बोलू, चलो मैं भी गया नहीं। ऐसे करना है, इससे बेटर आप ना करें। मन से एकदम पवित्र मन, हे प्रभु आज मेरा कल्याण होके रहेगा, आज मुझे इसमें से जरूर मेरे लाभ के जितने भी है वो सब द्वार खुलेंगे। एक बार आप संकल्प लेके देखिए, उसी समय में धीरे धीरे आपके मस्तिष्क में से एक हार्मोन्स निकलता है, एक रस निकलता है, जो आपकी इंद्रियों के अंदर संचालित होता है। जितने भी आदि व्याधि पुनादि रोग होते हैं वो निकलने की तैयारी करते हैं, और आगे कभी ना आए उसके लिए पहले से बंदोबस्त करते हैं। वो अग्निहोत्र हवन का सबसे पहला संकल्प ही ये होता है। अग्निहोत्र हवन का मतलब ही ये होता है कि आपके जीवन की कामयाबी के द्वार खोलना, आपके जीवन की सुख शांति समृद्धि के अंदर प्रेरणा देना, आपके जीवन के अंदर आदि व्याधि पुनादि जितनी बाधा है उसका निराकरण करना, आपके जीवन के अंदर कभी रोग ना आए और जो रोग है वो मिटने लगे, उसी की तैयारी करना, यानी अग्निहोत्र हवन। आपने देखा होगा हवन कराने के लिए क्या हवन का कितना महत्व होता है। जब आप जन्म लेते हैं तब माँ बाप बाधा लेते हैं कि मेरा बेटा होगा तो मैं यज्ञ कराऊंगा, पंडित जी को बुलाते हवन करवाते हैं। बड़ा होता है, 5 साल होते हैं, बाल बढ़ते हैं, जब मुंडन करवाते हैं तब हवन होता है, दिगंबर काका होता है ना। उसके बाद जब फिर वापस जवानी की तरफ बढ़ते हैं, लड़की देखते हैं, शादी करते हैं, तब हवन होता है। फिर घर में अच्छे कर्म करने के लिए कोई टाइम आया तब हवन होता है। घर में कुछ नया, दो भाई होते हैं, पिता के साथ रहते हैं, दोनों की शादी हो गई, पापा बोलते हैं कि भाई एक और मकान बना लो, आप वहां रहने चले जाओ। तो जब वहां नए मकान की शुभारंभ करते हैं तब हवन होता है। अच्छे काम के टाइम में भी हवन होता है। कभी कभी लगता है कि यार सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, फिर भी पैसों की बचत नहीं होती है, चलो पंडित जी से पूछ लेते हैं और घर में कुछ ना कुछ लक्ष्मी हवन कराते नहीं कराते साहब जी। उसके बाद जब कभी भी घर में कुछ बाधाएं आती है, विघ्न आते हैं, तब हवन होता है। और अंत में हवन अपना सबसे बड़ा हवन होता है जब अपन मृत्यु की शैया पे लेटे हुए होते हैं, जब आपका दाह संस्कार होता है, वो भी एक हवन होता है।
तो जन्म से लेके मृत्यु तक हवन आपका पीछा नहीं छोड़ता है, अग्निहोत्र आपकी पीछा नहीं छोड़ रही है, अग्निहोत्र आपके जीवन के अंदर संकल्प साथ में लेके चल रही है। तो जो एक शाश्वत और जो सत्य है उससे मुंह कैसे मोड़े। आपने बहुत देखे होंगे, कथाकार आते हैं, कलाकार आते हैं, संगीतकार आते हैं, पत्रकार आते हैं, जिनके पीछे सबके पीछे कार लगता है। कार का मतलब एक उनकी सीमाएं, उसके अंदर फारसी भाषा के अंदर इसका जब उल्लेख किया गया तो कार का मतलब होता है एक सीमाएं, एक सीमा होती है सबकी। और यज्ञकर्ता का मतलब आता है अनंत सीमाएं, उसकी कोई सीमा नहीं है। शास्त्र के अंदर आप देखिए, कभी भी यजुर्वेद में लिखा है कि यज्ञकर्ताम पार्थम पूजनम समस्त देवलोकम कल्याणम हेतुसम भूदेवम देवदेवम हेतुसम समस्त पूजनीयम कृष्यात्मी। एक यज्ञकर्ता ही वो होता है जो भूमि पे देवों की तरह पूजा जाता है। बहुत जनों ने कथा का काम लेके चलते हैं। कथा के अंदर जब तक आप श्रवण करते हैं, आपके कानों में आप लेते हैं, तब तक उसका परिणाम आपको, उसमें से भी 100 में से 90 जने उस पर अमल नहीं करते। क्यों? क्या वो कथा कर रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन में अमल लिया है। आप लोगों के अमल में लेने के लिए समय लगता है, आपके लिए एक संकल्प होता है। और संकल्प पृथ्वी पे यजुर्वेद में लिखा है कि इंसान जब अपने संकल्प के साथ, अपनी प्रेरणा के साथ, अपनी कामयाबी के लिए जब निकलता है तो उसको संकल्प का साक्षी होती है सिर्फ अग्नि। जो इंसान अग्नि को मान के, अग्नि को साक्षी बना के, अग्नि को अपने जीवन में उतार कर यज्ञोपवीत अग्निहोत्र हवन के अंदर संकल्प लेके आगे बढ़ता है, उसके निश्चिंत खुशी के द्वार खुलते हैं। उस इंसान के जीवन में सदैव खुशियां आती है, उस इंसान के जीवन में सदैव कामयाबी के द्वार खुलते हैं। उस इंसान के घर में रोग दोष सब धीरे 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 कटने लगते हैं। उसके बाद हवन मेरा भाग्य, आप लोगों को मालूम होगा, बहुत जने दादाश्री से मिलने आते हैं। दादाश्री के पास जाऊंगा, दादाश्री को पूछूंगा क्या समस्या है, तब दादाश्री कुंडली खोलते और बोलते भैया सूर्य कमजोर पड़ा है, सूर्य का हवन करा लो। तब आप अपने मन में करते, अरे यार सूर्य मेरा कमजोर था, यानी अब मुझे सूर्य का हवन करूंगा और सूर्य को प्रणाम करूंगा, सूर्य देवता का हवन करूंगा, यानी पक्की बात है कि मेरे कामयाबी के द्वार खुलेंगे। एक उस समय में एक आशा जगती है अंदर, उसे कहते हैं हवन मेरा भाग्य। उसी के साथ जब देखना आप लोगों ने, काफी बार आपको लगता है अरे यार के कुछ घर में ठीक नहीं हो रहा है, बहू के साथ बराबर नहीं जम रही है, पति पत्नी दोनों जने कभी कभी दो बर्तन जोर जोर से खकड़ रहे हैं, कभी कभी धंधे में कुछ ना कुछ तैयारियां नहीं हो रही है, हो रहा है तो नुकसान आ रहा है, कभी कभी ऐसा लगता है खेती कर रहे थे फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कभी कभी ऐसा लगता है कि रोग ठीक ही नहीं होता है। तो अब लगता है यार कहीं किसी की बुरी नजर तो नहीं लगी है, कहीं किसी को अपने घर में कोई नजर दोष तो नहीं है, या किसी द्वारा किया गया कोई जादू टोना तो नहीं है। तब अपन विचार करते हैं कि चलो मैं हवन करूंगा, मेरा भाग्य खुल जाएगा। तो आप उस समय में पंडित जी को बुलाते और हवन करते नहीं करते? जरा तो बोलिए ना साहब जी, मेरी इज्जत का सवाल है। वासुदेव जी आप ही बोलिए, चलो करते नहीं करते? करते, ठीक है साहब। उसके बाद देखो, जब जब हवन मेरा भाग्य के अंदर एक दूसरा भी उदाहरण होता है, अग्नि के 7 फेरे लिए जाते ना। देखो कृष्णों में लेते हैं, कहीं सुना आपने? सुना है कभी किसी ने? मुस्लिम के अंदर लेते हैं? नहीं लेते। लेकिन वो धर्म भी पवित्र है, किसी धर्म का अपमान नहीं है, देखना। और सबसे पहले आप गूगल के अंदर सर्च करो, शास्त्र के अंदर सर्च करो कि अग्नि के 7 फेरे लिए होते ना। अपने भारत में एक ऐसा है जिसमें सबसे कम तलाक होते हैं। आप देखना, भारत देश ही एक ऐसा है जहां तलाक की संख्या सबसे कम है। इसका एक ही कारण है कि आपने अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लिए। अगर बहू घर पे गुस्सा करके, कभी कभी लगता है नई नई आई होती है, आप उनको नहीं समझ सकते, वो अपने को नहीं समझ सकती है, चले जाते, तो अपन माँ बाप क्या बोलते हैं, जावा दे दीकरा 7 फेरा લીધેલા છે એટલે હવે એક ભાવના 2 ભાવ નથી કરવા, ये बोलते नहीं बोलते साहब जी कि भाई ये एक भाव के 2 भाव नहीं करने। इसका कारण है कि वो अग्नि की साक्षी होती है, अग्नि का आशीर्वाद होता है, अग्नि रूपी प्रेरणा आपको देती है कि हे बालक तू मेरे तरफ बढ़ रहा है तो मैं तेरी कामयाबी के द्वार अवश्य खोलूंगा। मैं विदेश के अंदर 64 देशों में घुमा, 64 कंट्रीज। हर देशों में सबसे बड़ी समस्या आती है तलाक की। जाता हूं, कोई गोरा मिलता है, अरबिक मिलता है, फ्रेंच मिलता है, कोई ना कोई मिलता है। जाता हूं तब दूसरा, दूसरी बार जाता हूं तब तक तो दूसरा हो गया। मतलब उनके जीवन के अंदर कोई संकल्प नहीं था, इसलिए सबसे ज्यादा तलाक के प्रमाण होते हैं। वहीं अपने भारतीय संस्कृति हर जगह पे आपने देखना यज्ञ का महत्व लेके चलती है, हवन का महत्व लेके चलती है, अग्नि का महत्व लेके चलती है। मैं बीच में नैरोबी गया था। नैरोबी के अंदर इंडियन
क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, वैसे नैरोबी क्रिकेट केनिया क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। चंद्रकांत साहा वहां के प्रेसिडेंट है, जो अपने यहाँ केनिया की टीम खेलने आती है उसके प्रेसिडेंट है। उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया, गया। उनको मेरे यज्ञ बहुत प्रिय लगते, साल में एक बार वो मुझे टिकट भेजते, मैं जाता हूँ, उनके हवन करता हूँ। उन्होंने बोला, दादाश्री बहुत से मेरे मित्र इंग्लैंड से आए हुए गोरे हैं जिनको यज्ञ के बारे में जानना है। यज्ञ भगवान की सौगंध, मेरे जीवन के, मेरे धर्म की सौगंध में आपको एक सत्य बात बता रहा हूं। बैठे 15 जने गोरे थे, 15 से 16 जने गोरे थे। उन्होंने बोला, आपके इंडियन के अंदर जो आप हवन करते हैं, उन्होंने मेरा परिचय दिया कि दादाश्री यज्ञ करवाते हैं, बहुत अच्छा यज्ञ होता है, उनके यज्ञ मैंने देखा, मैं उनके यज्ञ का दीवाना हूं। उन्होंने कुछ मेरे बारे में, यज्ञ के बारे में बोला। तो एक गोरा उसमें से उठा, मर्डॉक नाम था उसका, क्या आप मुझे यज्ञ के बारे में थोड़ा प्रैक्टिकली समझाएंगे? तब उस इंसान को मैंने यज्ञ के लिए तैयारी करवाई। दूसरे दिन यज्ञ की तैयारी हुई, वो बैठा। यज्ञ के अंतर मंत्रों द्वारा, आध्यात्मिक क्रिया द्वारा अग्नि प्रज्वलित हुई। आप मानो नहीं मानो, उन जितने गोरे बैठे थे, उन्होंने जो जैसे वो यज्ञ देखा, अग्नि देखी, कि एक साधारण सा इंसान जो कल से मेरे पास बैठा है, उसने एक मंत्र से अगर अग्नि प्रकट कर सकता है तो इसके अंदर कुछ न कुछ क्रिया है, इसकी देवीय शक्ति है, बहुत पावरफुल है। भोलेनाथ की सौगंध, उस इंसान ने मेरे पास बार्कले बैंक का चेकबुक रखी। ये चेकबुक दादाश्री आपकी, आप जितने पैसे भरने भरते रहना, 25 बुक पाने की बुक थी, और आप यहीं रहो, ये क्रियाएं हमें बताइए, हमें सिखाइए, और हमें इस अग्नि की तरफ से आगे बढ़ना है। इसका कारण होता है, अपनी जो भी अच्छी क्रिया होती है गोरे पहले लेने की कोशिश करते हैं। वैदिक धर्म के अंदर भी शास्त्र में इसका उल्लेख दिया गया है कि आपको अगर संस्कृत में, सब पढ़े लिखे बैठे यहाँ, संस्कृत में अगर आपको MA BEd करना है तो इंडिया में होती है, PhD करना है तो आपको या तो जर्मनी जाना पड़ता है, बर्लिन जाना पड़ता है, या स्विट्जरलैंड जाना पड़ता है, या फिर अमेरिका के अंदर एटलांटा में होती है। जहां आप और हमने छोड़ा, उनके बाद उन्होंने पकड़ा। इसे कहते हैं वैदिक धर्म की परंपरा। आप और हमने बहुत कम समय के बाद बहुत देर कर दी, लेकिन फिर भी देर हुई है, अंधेर नहीं हुई है। मेहरबानी करके हर पात्र यज्ञ के अंदर मन, वचन और कर्म से अपना संकल्प ले। आपका मोबाइल नंबर के साथ कल आपको 24 घंटे में मैसेज आएगा कि आपको हवन कैसा लगा। सबको अपना अपना ओपिनियन भेजना है। उसके बाद हवन से स्वास्थ्य, हर जगह पे आपने देखा है कि आप एक संकल्प लेके बैठना। अगर किसी भी बंधु को घर में छोटी मोटी बीमारी है, भगवान करे बड़ी बीमारी कभी ना आए, फिर भी कोई अगर है, आज आप संकल्प लेके बैठना। विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ कहता हूं कि आपकी वो बीमारी दूर होगी। उसके बाद जब जब भी आपने देखा होगा, आपने बहुत धारावाहिक भी देखते हैं, धार्मिक धारावाहिक, उसमें भी आपने देखा होगा भगवान रामचंद्र जी हवन कराते दिखे। कृष्ण भगवान अभिमन्यु की जब मृत्यु हो गई, उसके बाद भी उन्होंने अर्जुन से कहा कि अर्जुन दुख करने का बाद में समय, फिलहाल तो अग्निहोत्र हवन करने का समय आ गया है। यानी उन्होंने भी इतनी दुख घड़ी में भी यज्ञ नहीं छोड़ा। हर कोई शास्त्र खोलिए, और हवन ही एक ऐसा है जो चारों वेद के अंदर उसकी महिमा लिखी है, अथर्व, युजुर, साम और ऋग्वेद। एक भी आप यज्ञ के अंदर एक एक पाना खोलिए, हर वेदों के अंदर। पीछे आए हुए बहनों को जरा जल्दी से जल्दी जगह दिलाएं। उसके बाद आप संकल्प के साथ शास्त्र पढ़ते हो, तब भी आपको उसके अंदर देखेंगे आपके हवन की महिमा लिखी हुई होती है। आत्मा का विकास 3 बातों से होता है, चिंतन, मनन और पठन। अच्छे से अच्छा शिक्षक होगा, बहुत बड़ी क्लास का, वो सिर्फ आपको एक शिक्षा देगा, लेकिन जो अच्छे से अच्छा गुरु होगा वो आपको ज्ञान देगा। तो आप और हम सब मिलकर यज्ञ देवता गुरु मान के आज इस संकल्प को ग्रहण करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। आप बोलोगे दादाश्री आप ये प्रक्रिया लेके चलते हैं, यज्ञ की लेके चलते हो। मैंने भोलेनाथ की सौगंध ली थी कि हमें इस यज्ञ का कहीं रुपया नहीं चाहिए। क्यों? अग्निहोत्र हवन का पैसा नहीं लिया जाता है। अग्निहोत्र हवन मन, वचन और कर्म से किया जाता है। आज यज्ञ के अंदर मैं खुद अग्नि मंत्रों द्वारा प्रकट करना, अग्नि को साक्षात देव स्वरूप मानना, ये सब इंसान कब सीख सकता है? आप क्या मानते हो कि अगर मेरे पापा होते और उनके पीछे अगर 1 करोड़ रुपया होता तो वो मैं विद्या नहीं सीख सकता है? इंसान विद्या तब सीखता है, भूखा पेट, खाली जेब और मजबूरियां, ये 3 सिखाती है इंसान को। और ये तीनों मेरे जीवन में पीछा नहीं छोड़ी 15 साल।
ऐसा ऐसा भी वक्त आया जब साधनाएं करते थे, तब मेरे गांव लोग क्या बोलते थे मालूम मालूम है? कि मेरी पत्नी बैठी है, पूछ लेना कि तेरे भाग्य फूट गए कि तू इसके पीछे पड़ी है, फकीर के पीछे। क्यों? कि इंसान जब साधनाएं करने जाता है तब उसके जेब में पैसे नहीं होते साहब। और शास्त्र में एक उल्लेख है कि उस समय में कौन देगा भैया, आपके पास कोई विद्या ही नहीं है तो चमत्कार को नमस्कार होते, ऐसे कौन देगा? और विद्या सीख रहा था। गांव के लोग बोलते थे इसको कमाना नहीं है, इसलिए ये जाके पहाड़ों में जाके चुप के बैठता, लेकिन मेरी तो साधना की क्रिया चलती थी। आज वही गांव क्या बोलते मालूम है? दादाश्री आपके नाम से एक गांव का सर्कल बनाना हमें। यानी वो समय से ये समय, इस दोनों को मिलाते मिलाते बहुत जने मिलते, क्या वाह दादाश्री बहुत डेवलप आ गया, बहुत प्रगति होगी आपकी, बहुत होगी। लेकिन जहां लोग बोलते थे ये कुछ नहीं कर सकेगा, और जहां बोलते कि आपके नाम से अब सर्कल बनाना है, इस दोनों के बीच की जो यात्रा है वो तो मेरे पैर में पड़े हुए चाले देख के मालूम पड़ सकता है कि उस यात्रा के अंदर कितनी कठिनताएं आई होगी। उस यात्रा के अंदर मैंने कितने जख्म खाए। आज भी मैं बोलता हूं, जब हवन का काम लेके चलते हैं 10 हाँ भरते तब 2 मजाक उड़ाते, 10 हाँ भरते तब 2 मजाक उड़ाते। मजाक उड़ाने का कारण है क्योंकि उनको धर्म का मालूम ही नहीं है, धर्म क्या है वो पता ही नहीं है, शास्त्र पढ़े ही नहीं है। इसलिए कहता हूं हर किसी बंधु से, मन वचन और कर्म से आप एक बार संकल्प लेके देखना। मैंने जीवन में हजारों कुंडी यज्ञ करवाए, शिवलिंग का सबसे बड़े से बड़ा 5,500 कुंडी का यज्ञ हुआ, लेकिन अग्निहोत्र हवन मेरे भी जीवन का सबसे बड़ा है। ये आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। आपके घर में खूब सुख शांति और समृद्धि आए, आपके जीवन में खूब खूब मनोकामनाएं पूरी हो, खूब प्रगति हो। नए साल के दिन 18 बार मानसरोवर की यात्रा करने वाला इंसान आपको प्रणाम करता है। एक भजन की तैयारी होगी, उसके पहले मैं आप लोगों को एक कहना चाहता हूं, सब धीरे धीरे अपने जो पैकेट रखे हैं धीरे धीरे सब संभाल लें, खोलने की तैयारी करें। तब तक एक भजन लिया जाएगा, आनंद लीजिए, उसके बाद फिर अपन तैयारी करेंगे। समय की कोई मर्यादा नहीं है, आज समय की जरा भी मर्यादा। अशोक भाई चिंता वाली बात नहीं है ना? बस जी। उसके बाद धीरे 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 आप और हम अग्निहोत्र हवन में आगे बढ़ेंगे। दिगंबर काका पैर लंबे कर दो, कर दो जी साहब। बोलो श्री अग्निहोत्रम हवन भगवान की। खोलिए।